میرے بچے، خدا جانتا ہے کہ میری نظر میں تمہارے اور مختار کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ تمہارا غم تمہاری ماں دمہ کا غم اور تمہارے بھائی مختار کا غم ہے۔ میں تمہیں یہ کہنے نہیں آئی ہوں کہ غم نہ کھاؤ اور بےتابی نہ کرو۔ بیوی اور بچے کا داغ جان لیوا ہوتا ہے۔ ہم سب ہی موت کے راستے کے راہی ہیں۔ حضرت اسرائیل کسی کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اپنی ماں کی مانو تو میں کہتی ہوں کہ اس غم کو اتنا خود پر طاری نہ کر لو کہ یہ تمہیں خانہ نشین کر کے تمہارے دشمن کی خوشی کا باعث بن جائے۔ کاش شیری بانو محل سے جانے میں جلدی سے کام نہ لیتی۔ میں نے اسے بہت روکا، مگر گویا محل کے تمام در و دیوار اسے بہت چبھنے لگے تھے، یا پھر شاید موت اس کے انتظار میں تھی اور اسے محل سے کھینچ کر لے آئی۔ انسان چاہے کچھ بھی کر لے اپنی موت سے نہیں بھاگ سکتا۔ میں آپ کے آنسوؤں کے ساتھ آنسو بہانے اور یوں اپنے آپ کو سکون دینے کے لیے آئی ہوں۔ شیرین اور حیدر کے داغ نے ہم سب کو سوگوار کر دیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا درد بہت بڑا ہے۔ شیرین اس موتی کی سی تھی جو آپ کے پاس دیر سے آئی اور جلدی چلی گئی۔ یہ بھی عشق کے راہ اور رسم ہے کہ آپ تنہائی کو اپنا رفیق بنا بیٹھے ہیں۔ شیرین بہن سے اس لیے گئی تاکہ جو اسے مطلوب تھا اسے پا سکے۔ ارے بھائی رانی ملکہ عالیہ، اپنا بوریا بستر باندھ لو۔ آج سے ہم عرب اشراف کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے جو ایرانی نجات کی تحقیر کرتے ہیں کوفے کے محل میں رہیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ اب سے تمام امراء، وزراء اور قیام مختار کے تمام سرکردہ افراد اپنے گھر والوں سمیت قصر کوفہ میں رہیں گے۔ یہ امیر مختار کا حکم ہے۔ تمہیں بچپنے کی سوچی ہے کیا؟ تمہیں واقعی خوشی ہو رہی ہے؟ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے شیریں بانو۔ میں تو اتنا خوش ہوں کہ میرا دل چاہ رہا ہے کہ چیخ چیخ کے سناؤں تاکہ میری آواز تمام عرب کے جاہل قوم پرستوں کو پہنچے۔ سالوں سے عرب کی جہالت نے ہماری نجات کی تحقیر کی ہے۔ آج ہماری خوشی کا دن ہے۔ تم نے کیوں منہ بنا لیا شیریں؟ کیان، تم جب بھی عربی اور ایرانی نجات کی باتیں کرتے ہو مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ تم علی کے شیعہ ہو۔ علی کا چاہنے والا قومی اور نسلی تعصبات کی باتیں نہیں کرتا۔ میں جانتا ہوں شیریں، تم یقین کرو میں یہ سب جان بوجھ کر نہیں کر رہا، مگر سالوں سال زد و کوب، توہین اور تحقیر دیکھنے کے باعث میں مجبور ہو گیا کہ اپنی خوشی کا اظہار کروں۔ میں بچوں کی طرح خوشی سے اچھل رہا ہوں کہ اسیری کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اب آزادی اور سرداری کا وقت ہے۔ اٹھو، ہمیں جلد سے جلد گھر سے نکل جانا چاہیے۔ بہت سی عورتوں کی آرزو ہوتی ہے کہ ان کا محلوں جیسا گھر ہو۔ شاید تمہیں یقین نہ ہے کیان، میں اپنے اس پرسکون گھر کا محل سے تبادلہ کرنے پہ تیار نہیں ہوں۔ ہمارا محل سے کیا واسطہ؟ دیکھو شیریں، مصلحت قیام کا تقاضا ہے، ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ عرصہ محل میں رہنا ہوگا۔ کیسی مصلحت کیان؟ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کا قیام مولا علی کی خوب رکھتا ہے۔ مولا علی محل میں ٹھہرے تھے کیا؟ تم کیسی باتیں کر رہی ہو شیریں؟ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محل میں تھوڑی رہنا ہے۔ قیام کے دشمنوں نے اور اہل شر نے قیام کو برباد کرنے کی ٹھان لی ہے۔ ابراہیم اور اس کی فوج کے جانے سے کوفہ قیام کے سپاہیوں سے خالی ہو گیا ہے۔ میرے جاسوسوں نے اطلاع دی ہے کہ شمر اور شبس جیسے خبیثوں نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ قیام کے سرکردہ افراد کے گھروں پر حملہ کر کے ان کے گھر والوں کو لقمہ بنا لے اور قیام کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں۔ میں نے تم سے عشق کا بندھن جوڑا ہے کیان۔ اگر تم میری جان بھی مانگ لو گے تو دریغ نہیں کروں گی۔ کاش مختار دشمن کی چال بازیوں سے نمٹنے کے لیے کوئی بہتر حل ڈھونڈتا۔ میں جہنم جانے کے لیے راضی ہوں مگر قصر نہیں۔ میں شیریں کا قاتل ہوں، شیریں کا قاتل ہوں۔
قاتل ہوں شیرین. میں نے اپنے حیدر کو مار ڈالا. خدا کی پناہ، بیچارہ پاگل ہوتا جا رہا ہے. بکواس مت کرو ناریا، بات کرنے سے پہلے موقع محل دیکھ لیا کرو. میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی. آپ خود تو دیکھ رہی ہیں کچھ زیادہ ہی پاگل ہو گیا ہے. میں ہی شیرین اور حیدر کی موت کا باعث بنا. تجھے ارملا کو مارنے کی ایسی کیا ضد تھی بدبخت بدبخت. اپنے آپ کو سنبھالو کیان، تم نے اپنا فرض نبھایا ہے. اپنے آپ کو قصوروار کیوں ٹھہراتے ہو؟ ہم نے غلط راستہ اختیار کر لیا تھا. ہم یعنی کون لوگ؟ یعنی وہ تمام لوگ جو خون حسین کے انتقام کے بہانے طلبگار حکومت تھے. تو اس کا مطلب تمام شہداء کا خون مختار کے سر ہے. میں مختار کو کچھ نہیں کہہ رہا. میں فی الحال صرف اپنا گریباں نوچ رہا ہوں. میری آج کی یہ مصیبت میرے اعمال کی سزا ہے، ہٹ جانے کی سزا سے رات مستقیم سے. کیا تم مختار سے جدا ہونا چاہتے ہو؟ میں اپنے اندر کے شیطان سے جدا ہونا چاہتا ہوں. کیان کے استعفے دینے کی خبر مختار کی کمر توڑ دے گی. دمہ جان، یہ خبر آپ ہی مختار کو سنائیے، مجھ میں تو اس کی ہمت نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں کہ مختار کو بہت خوش ہونا چاہیے. اس نے ایرانیوں سے دوستی کا خمیازہ کچھ کم نہیں بھگتا. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. اگر کیان چلا جائے تو عرب کے بڑے بزرگ مختار سے دوستی کر لیں گے. آخر تم کب ایرانیوں کی دشمنی سے دستبردار ہوگی ناریا؟ کیان اور مختار بہت پرانے دوست اور ساتھی ہیں. جوانی سے ایک ساتھ رہے، ایک دوسرے کے فراق کو نہیں سہ سکتے. آپ نے سن تو لیا دمہ جان، وہ مختار کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا. اگر اسے شرم مائل نہ ہوتی تو اپنی بیوی اور بچوں کا خون بھی مختار کے ساتھ تھوپ دیتا. استغفار کرو ناریا. کیان سوگوار ہے، بیمار ہے اور بخار میں پڑا ہے. اگر کوئی غلط بات کہہ بھی دے تو اس کا کوئی قصور نہیں ہے. بہت حسن زن سے کام لیتی ہو. وہ اب تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا. وہ کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، کیان بیوی بچے کا داغ اٹھائے اور مختار کوئی غم نہ سہے. یہ کس طرح کا فیصلہ ہے عورت؟ حقیقت کڑوی ہی ہوتی ہے مختار. آخر کیان کا تمہیں پیٹ دکھا کر صفا دینے کی کیا وجہ ہے؟ مختار نے اس کی بیوی اور بچوں کو مارا ہے یا ہرملا نے؟ اگر اس کی داڑھی میں کوئی چوروں والا ٹنکا نہ ہوتا تو وہ ہرملا کے خون کا مزید پیاسا ہو جاتا، نہ کہ پیچھے ہٹ جاتا. بکواس بند کر عورت. تمہاری زبان کے بچھو نے ہمیشہ بیچارے کیان کو ڈنک مارا ہے. آخر تم کب تک اس اندھی اور جاہلانہ دشمنی کو آگے بڑھانا چاہتی ہو؟ اگر میں یہ کہوں کہ کیان کا آج پیچھے ہٹنا تمہارے سالوں سے کینہ توزی کی وجہ سے تو غلط نہ ہوگا. آخر کیان کو مختار کے رکاب میں کیوں رہنا چاہیے جبکہ اسے مسلسل مختار کے گھر والوں سے تحقیر اور توہین کا سامنا کرنا پڑتا؟ مختار، میں پولیس سے رات پہ تمہیں چھوڑوں گی نہیں. سن رہی ہو امرا؟ جب سے بادشاہت ملی ہے اس کی آواز اونچی ہو گئی ہے. مجھے شک ہے تمہارے دل میں بال بچوں اور اپنوں کی ذرا سی بھی محبت ہونے میں. تمہارا باپ اور بھائی ایرانیوں کے ہاتھیوں کے پاؤں تلے دب کے مر گئے اور تم نے نہ جانے کیسے اپنا دل ایرانیوں کو نکال کر دے دیا ہے. تم نے ویسے بھی ایرانیوں کے لیے بہت کچھ کیا ہے. ذرا اپنا تک تو تاج بھی کیان کو نکال کے دے دو تاکہ تمہیں نظر آئے کہ وہ کیسے خوشی کے مارے اپنے بال بچوں کا غم بھول جائے گا. اگر مجھے خدا کا خوف نہ ہوتا تو اس عورت کو طلاق دے دیتا. بیٹا، اپنے صبر کا ثواب ضائع مت کرو. مختار تمہاری طرح کے مردوں کو حامل صبر ایوب ہونا چاہیے. تم کچھ بتاؤ ہمارا. امید نجات کیان ہے کوئی؟ مختار، کیان تمہاری رقابت میں مغلوب ہو گیا ہے. رقابت وہ بھی مجھ سے؟ ہاں، رقابت وہ بھی تم سے. اس نے خطرناک ترین اور مشکل ترین کاموں کو اپنے ذمے لے کر اپنے آپ کو قیام کا سب سے زیادہ طاقتور شخص کہلوانا چاہا تھا. جب وہ ہرملا سے لڑنے میں شکست کھاتا ہے اور اپنی بیوی اور بچے کو بھی گنوا دیتا ہے تو اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے. اس نے تم پر، تم لوگوں کے قیام کے اہداف پر شک کیا ہے.
اس کا ماننا یہ ہے کہ مختار نے قیام کی راہ میں اصل راستہ کھو دیا ہے۔ یہ قیاس تو بالکل بے تکا ہے عمارہ۔ اگر کیان لڑنے کی راہ سے منحرف ہو گیا ہے اور اپنی خاطر تلوار نہیں چلا رہا تو اس میں مختار کا کیا قصور ہے؟ تمہیں اس کی مدد کرنی ہوگی۔ یہ جان لو کہ قیام کا درد قیام کی حکومت کا درد ہے، جسے جلد سے جلد ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ آپ نے زحمت فرمائی امیر۔ میں مختار ہوں کیان، تمہارا سالوں اچھے برے وقت کا دوست۔ ہمارے دلوں کو عشق علی نے آپس میں جوڑے رکھا ہے۔ مکتب علی میں امیر ہو یا اسیر، شاہ ہو یا بھکاری، شرط سر بلندی صرف اس کا عشق ہے۔ تمہاری بہت یاد آ رہی تھی تو چلا آیا۔ خوش آمدید مختار۔ راستہ اور مذہب زندہ رہے گا۔ آخر کب تک سیاہ پوش ہو کر تعزیت میں رہنا اور ہم سے دور رہنا چاہتے ہو؟ مجھے نہیں معلوم مختار۔ میں نہ تو شیرین کے لیے اچھا شوہر بن سکا اور نہ حیدر کے لیے اچھا باپ۔ میری ساری زندگی صرف سفر اور خطروں سے بھری ہوئی تھی۔ کاش ایک بار شیرین اپنا شکوہ بیان تو کرتی۔ وہ میری زبردستیوں پر راضی رہتی تھی اور کچھ بھی نہ کہتی تھی۔ میں اس بات پہ کڑنا ہوں کہ شیرین اور حیدر کو بے بسی میں مارا گیا، یہاں تک کہ کسی نے ان کی چیخ بھی نہیں سنی۔ کاش ارملا مجھے مار ڈالتا، مجھے اس کا بدلہ چکانا ہو۔ میری بیوی اور بچے کا قتل میرے سر ہے جو کہ انتقام کی پیاس میں اچھل رہا تھا۔ راستے کی حقانیت پر شک وہاں تک صحیح ہے جب تک یہ کفر تک نہ لے جائے۔ کیا تمہارے گھر والے مولا حسین کے گھر والوں سے زیادہ بے کس تھے؟ جو ظلم تم پر ہوا وہ ہمارے مولا حسین پر ہونے والے ظلم کے سامنے سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ جو بھی اس راہ میں جتنا زیادہ مقرب ہوگا وہ زیادہ مصیبتیں اٹھائے گا۔ خدا کی قسم، اگر سالوں جو ہم ساتھ مل کر ظلم و جور سے لڑے ہیں، اگر ایک بار بھی مجھے تم سے رشک ہوا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ تم نے بیوی اور بچے کا داغ دیکھا اور مختار نے نہیں دیکھا۔ تم اس وقت ہم سب سے زیادہ مولا حسین سے نزدیک ہو۔ تمہارا دل کیسے مانتا ہے، تمہارا دل کیسے مانتا ہے کہ راستہ موڑ کے چلے جاؤ ظالم؟ میں نے ان پتھروں کے محل میں عمر گزاری ہے۔ اگر ان ستونوں سے مجھے محبت ہو گئی ہوتی تو میں مختار کی بیوی نہ بنتی۔ جواب دندان شکن ہے۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ بانو کس بات پر غمزدہ ہے؟ مجھے یاد آ رہا ہے، سر بھی یاد آ رہا ہے مجھے۔ اس کے ساتھ محل میں آئی تھی، اس کے بغیر جا رہی ہوں۔ خدا اس کی مغفرت فرمائے۔ اگر وہ ہوتا تو بھی دروازے پہ کھڑا ہوتا اور چلا رہا ہوتا، جلدی کیجیے بی بی جی، جلدی کیجیے۔ میں نے اونٹ پر کجاوا رکھ دیا ہے، بیچارہ بے زبان جانور تکلیف میں ہے، تکلیف میں ہے وہ۔ خدا اس کی مغفرت کرے۔ مرغے کی صبح کی اذان،
खेतों में तेज हवा की आवाज और सर्दी, वो भाई जो दरख्त के साए की तरह मेरे लिए एक हक न जताने वाला शख्स था, जिसके साए तले में लफका की गर्म हवाओं से महफूज रहती थी और उसे बार बार तंग करती थी। एक दफा भी उसने बदतमीजी से जवाब नहीं दिया। लफका का इलाका जंगल की भीड़ों और कुत्तों की खौफनाक आवाजों के साथ सर्दी के बगैर बहुत डरावना होगा। आप मोहतरम खवातीन उन घरों की चश्मो चराग हैं जिनकी एक एक ईंट आपके मर्दों की पेशानी के पसीने के मरून मिन्नत है। जिन जवानों ने अपने काम काज छोड़ दिए हैं, तलवारें हाथों में ले ली हैं ताकि अपने शर्फ, दीन और नामूस का दिफा करें। जो रौब और वहशत कूफे के अशरार ने दिलों में डाल दिया था, उसने हमें मजबूर कर दिया कि कुछ अरसे इस बड़े महल के मेहमान हो जाएं। जानता हूं कि आप में से अक्सरियत को ये पसंद न था और महल में रहना आपके लिए निहायत दुश्वार था। मरहूमा शीरी बानो भी इस बात का एक बड़ा नमूना थी, जो महल में रहने को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, मगर दिल पर जब्र करके मजबूरन यहाँ पर ठहरी रही। काश वो चंद रोज और सब्र कर लेती और हमें अपना सोगवार न बनाती। अब जबकि खुदा के लुत्फ व करम से लईनों का शर खत्म और खतरा तमाम और अमन नियत बरकरार हो गई है, बेहतर है कि आप भी अपने सादा और हसीन घरों को लौट जाएं। अपने हुजरों की गर्द गुबार और मकड़ी के जाले खत्म कीजिए। आपकी मुर्गियां, बतखें और बगीचे आपके दाने पानी के मुंतजिर हैं। जाइए और अपने घरों में इश्क की आबो हवा को दोबारा कायम कीजिए। अमीर मुख्तार बजाते खुद आप लोगों को महल से जाने के बारे में इजाजत देने आना चाहते थे, मगर मैंने पेश कलामी की और उनके दिल की बात आपके हुजूर में अर्ज कर दी। खुदा जानता है कि मुख्तार, मैं और आपके शोहरों में से किसी एक ने भी क़याम से विरासत पाने की नीयत से तलवार नहीं चलाई। अगर मजबूरी न हो तो महल में रहना हमारे लिए गैर पसंदीदा बात है और क़याम की ख्वाहान अदल हुकूमत को बदनाम भी करता है। फी अमानिल्लाह। मरहबा अब्दुल रहमान, हम शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमारे बदले ज़हमत की और हमारे बोझ को हल्का कर दिया। जो झूठे अफराद हमें कज़्ज़ाब, हमारे क़याम को बेईमानी और हमारी हुकूमत को गासिब ठहराते हैं, उनका सारा खौफ हमारे अदल इंसाफ से है। अदल के तरफदारों का एक नजरिया ये भी है कि साहिबान मनसब हुकूमत आम लोगों की तरह जिंदगी बसर करें। हाय, गोया कोई ख्वाब देख रहे थे। अब हमें दोबारा अपने उसे कीड़े मकोड़ों से भरे घरों की तरफ लौट कर जाना पड़ेगा। बेफिक्र रहो बहन, कूफे में जिधर देखो शेमिल खूलिया और हुरमला जैसे लोगों से भरा पड़ा है। मेरे ख्याल से फिर हम इस जन्नत के मेहमान बन जाएंगे। खुदा करे तुम्हारी बात पूरी हो बहन। तुम चुप क्यों हो उमरा? तुम्हें तो इस खबर से खुश होना चाहिए। उम्मे साबित की जबान के डंग से तुम्हारी जान छूट गई। मुख्तार के लिए फिक्रमंद हो राहिला, वो जमीन से उखड़ता जा रहा है। तुम परेशान मत हो। मेरे और तुम्हारे लिए हमारे मर्दों की याद ही शौहर कहलाती है। मेरा दिल तो बेकरार है उस आशियाने के लिए जो इब्राहिम की खुशबू से भरा हुआ है। मुझसे मिलने आओगी ना उमरा? जिंदगी रही तो आऊंगी इंशाल्लाह। सुकून मिल गया। खुदा तुम्हारे बाप की मग़फ़िरत करे मुख्तार। कितना अच्छा काम किया इसने हमें इस कैद खाने से छुड़ा के। मैं तो मर गई थी बच्चों की टियां टियां सुन सुन कर। इतनी सारी गरीब और बेढंगी औरतों के रेवड़ के साथ मिलकर रहने की कौन हसरत करता है। कोई भी जगह इंसान के अपने घर के जैसी नहीं होती। अबू मुफलिस खलीफा जुबैरी को लेकर यार है। जी अमीर।
खलीफा के अहकामात के ताबेदार हैं। बनी उमैया ने हिजाज की जानिब लश्कर कशी की है। हरम बैतुल्लाह का दिफा हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। अगर आपको हमारी मदद की जरूरत है तो मुज़ायका न फरमाइएगा। खुदा का लश्कर जहाद के लिए तैयार है। वस्सलाम, मुख्तार इब्न अबू उबैद सक़फ़ी। मालूम हमें बेवकूफ बनाना चाहता है। ये लंबा चौड़ा झूठ आप सबने बगौर सुन लिया। हमारे हाकिम से लड़ा है, उसे कूफे से निकाल चुका है, सारे मजे लूट चुका है, और फिर खत में हमारी इताअत की बातें करता है। शैतान कहीं का ऐसे खतों किताबत कर रहा है कि जैसे हम कहना नहीं चाहिए गधे हैं। इराक़ अरब बाढ़ में जाए, मगर इस तौहीन का क्या करें? मेरे ख्याल से मुख्तार के इस साजिशी मीठी लहजे के पीछे कोई बड़ी चाल है। जाफर, शक न करो। मुख्तार इस खतो किताबत और दिलसोज माँ के लहजे के जरिए हमारे गुस्से से बचना चाहता, ताकि पुरसुकून होकर फतह मूसिल पर तवज्जो दे सके। यकीन करो जाफर, इब्न मरजाना पर गलबा पाने के बाद हमारे खिलाफ तलवार उठाएगा। शाबाश। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर। माफी चाहता हूँ भाई, आप मुख्तार की मक्कारी से वाकिफ हैं, तो हमले का हुक्म क्यों नहीं देते? फिलहाल ये मसलहत के खिलाफ है कि हम उससे पंजा आजमाई करें जाफर, खास तौर पर जबकि वो बनी उमैया के खिलाफ खड़ा हुआ है। इब्ने जियाद का शर दफा करना तमाम मुसलमानों के मफाद में है। अभी दरायत और सियासत के साथ इस बागी जानवर को महार किया जा सकता है। ये लो मखजूमी, ये रहा तुम्हारी इमारत का हुक्म। और ये रहे 30,000 सोने के सिक्के। ये कोई छोटी रकम नहीं है। इस रकम से कम आधे खाने काबा को सुनहरा किया जा सकता है, जो मेरी बहुत पुरानी आरज़ू थी। मगर अफसोस कि कूफे पर तसल्लुत पाना खाने काबा को रौनक बख्शने से ज्यादा वाजिब है। मुख्तार के मुताबिक जैसा कि उसने लिखा है, हमारा ताबेदार है, उसे कूफा तुम्हारे हवाले कर देना चाहिए। अगर हवाले ना करे तो फिर उस सोने के ढेर से एक लश्कर बनाओ और उसके शर को दबा कर दो। देखो देखो कैसे जगमगा रहे हैं। इतने सारे सोने से तुम सारे जहां की आंखों को अंधा कर सकते हो। क्या आपके मुताबिक ये हो सकता है? ये बहुत ही आसान काम है मुसलमान। कितने अहमक हो तुम। अगर ना हुआ तो अपने इस बड़े से सर को बसरा की तरफ मोड़ लेना। जाफर, क्या तुम समझते हो कि उमर इब्न अब्दुल रहमान मखजूमी इस मैदान के काबिल है? अभी निकला नहीं है यहाँ से, और इसका पजामा फीक कर। माफी चाहता हूँ भाई,
इतना तो मान जाइए कि ये गले में फंसने वाला निवाला है, उसका हक है वो घबराए। मैं उसे समझा दूंगा। मेरा दिल इतने सारे सोने पर जल रहा है जाफर, मुझे डरे वो इन्हें जाय न करते। बहरहाल मैं तुम्हारी राय पर भरोसा करता हूं जाफर। सिर्फ इतना करो कि सोने के ढेर को मेरे पछताने से पहले मेरी नजरों से दूर कर दो। ये रही नए गवर्नर की कीमत। कितने हैं ये? 70,000 दिनार। वाह, ये कुछ ज्यादा नहीं? ये तकरीबन उस रकम की दुगनी है जो जुबैर के बेटे ने नए गवर्नर को दी है। चारा कोई नहीं। मुझे उम्मीद है कि इस रकम को देखने से गवर्नर साहब लालच में पड़ जाएंगे और कूफा के अलावा किसी और जगह इमारत के लिए चले जाएंगे। कबूल ना करे तो? कबूल ना करे तो तुम्हें दूसरी जबान में बात करनी होगी। दो ऊंट और एक सवार। बैद है कि वो मुख्तार की जानिब से हो। क्यों बैद है अमीर? अगर मुख्तार सरकशी करना चाहे और कूफे को हमारे हवाले ना करे तो उसके लिए वो एक ही कासिद भेजेगा। अगर वो खलीफा की इताअत करना चाहे और अपनी जबान पर कायम रहे तो उसे एक बड़ा काफिला शान के साथ और दबदबे के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए भेजना चाहिए था। ये कारवां तो किसी से भी शबाहत नहीं रखता। कानतम, मुख्तार का सिपाही। तो तुम्हारा कत्ल वाजिब है। क्यों? क्योंकि तुम मुख्तार के आदमी हो। मुख्तार का आदमी होना जुर्म है क्या? मुख्तार और उसकी पूरी हुकूमत अजमों की हिमायत की वजह से मुजरिम है। ऊंटों पर क्या लदा हुआ है? तिला। तिला? हाँ, 70,000 दीनार हैं। यकीनन उन अजमों के हुकूक होंगे जो मुख्तार और उसकी हुकूमत के नाम पर उछलते हैं। जी नहीं, कीमत है नए गवर्नर कूफा की। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जरूर कोई गड़बड़ है। आप कहें तो इन डाकुओं को मार भगाएं। इससे क्या होगा? एक तेवर दिखाएंगे तो कूफे वाले आपको बासानी कबूल कर लेंगे। चंद डाकुओं को भगा देने से तो कूफे वाले हमारे कुदरत के रोब में नहीं आ जाएंगे। खास तौर पर कूफे वाले जिनकी तलवारें उनके दिमाग से ज्यादा चलती हैं। इस बड़े खजाने की बरकत से इसकी जान बख्श देते हैं और घोड़े और ऊंटों को ले जाएंगे। तुम्हें बहुत खुजली है। इस खजाने से नाजुक बदन कनीजे खरीदेंगे ताकि वो हमें खुजाएं। तो तुम्हारा सर तुम्हारे बदन पर बेचैन हो रहा है। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम चिलगोजे। शायद मुझे अपनी मिर्चों वाली तेजी तुम लोगों को दिखानी पड़ेगी।
अगर इन ऊँटों को तुम लोगों ने हाथ भी लगाया तो अपने कत्ल के खुद जिम्मेदार होगे। इसे चबाओ, हम भी देखते हैं कितना तेज है। क्या अजूबा है ये शख्स, गजब का लड़ाकू है। ये गजब का मुआरका हमारी नजरों के सामने कोई हिकमत जरूर रखता है। कैसे हिकमत अमीर? मुझे नहीं लगता कि मुख्तार कुफे को हमारे हवाले करना चाहता है। ये रकम उससे दुगनी है, मगर मैं पागल ही हूंगा जो कुफे की हुकूमत की कुर्सी को 70,000 दीनार के बदले बेच डालूं। मर्जी है आपकी, चाहे तो ना बेचे। अगर ना बेचूं तो क्या करोगे? मैं तो एक मजबूर सिपाही हूं। अगर ना बेचेंगे तो आपको मुख्तार से लड़ना होगा। अगर चाहें तो इसकी फौज की एक झलक देख सकते हैं। वो सब ऐसे जंगजू हैं कि मुझ जैसे लोग उनके मुकाबले में है ही छे। मैंने कहा था ना कि इस मार्के के पीछे कोई हिकमत छुपी हुई है। ज़ाहिरन मुख्तार से सौदा करने के अलावा और कोई चारा नहीं। शेरों की तरह आए हो या गीदड़ की मानंद हार के आए हो? तो क्या मैं गीदड़ों की तरह नाकाम हो जाता? जाहिर है कि मैं कामयाब हो गया हूं। मद्दे मुकाबिल पहले तो नहीं मान रहा था। मंसूबे के मुताबिक जब लश्कर के परचम उसे दिखाए तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ये हमारी तरकश का आखिरी तीर था। जुबैर के बेटे को अगर हमारी चाल का पता चल जाए तो हमारे मक्के से मरासिम खराब हो जाएंगे। बिलाखिर उसे खबर तो जरूर पहुंचेगी। मुझे उम्मीद है कि इब्न जुबैर को खबर मिलने से पहले इब्राहिम इब्न ज़ियाद का काम तमाम कर चुका होगा। मेरे ख्याल से अगर तुम इन 70,000 दीनार को इब्राहिम के लश्कर पर खर्च कर देते तो जल्दी मकसद तक पहुंच जाते। इब्राहिम को दीनार नहीं चाहिए ज़ायदा, उसे वक्त चाहिए। खुदा करे कि खुशखबरी हो तुम्हारे पास। ऐसा ही है। नसीबैन के गवर्नर ने जब खत को देखा तो उसे चूम के आंखों से लगाया और तस्लीम की अलामत के तौर पर हाथ उठा लिए। अब वो आया है ताकि बैत कर ले और 1 साल का खैराज भी साथ ले आया है। कहाँ है? उन टीलों के पीछे है। मैं जल्दी आ गया ताकि इत्तला दे दूं। इब्ने लुगैत। जी अमीर। आप लोग यहीं रुकिए, सिपाही कुछ सुकून का सांस ले लेंगे। मैं गवर्नर से मुलाकात के लिए जा रहा हूं। जी अमीर। बहुत खुश नजर आ रहे हो भाई। क्यों नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। मुझे आज समझ आया है कि मालिक अश्तर का बेटा होना कैसी दौलत और नेमत है। नूर बरसे आपकी कब्र पर बाबा।
उसने जब हमारे मरहूम बाबा का नाम सुना तो अनकरीब मेरे पांव चूमने के लिए झुकने वाला था। मालिक की मीरास उसकी इज्जत व आबरू है। मालिक की इज्जत व आबरू मोहब्बत अली है। दुआ करो कि हम अच्छे बेटे साबित हों और उनकी लाज रख सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम, अहलन व सहलन। आफरीन है इस तवाज़ो और इनकिसारी पर। आपकी मेजबानी हमारे लिए फख्र और सरबुलंदी का बाइस है। हसब व नसब की गुफ्तगू करना तौहीन है। आपके मरहूम वालिद दुनिया जहां की इंसानियत के लिए बाइस फख्र थे। अगर सूरज भी मालिक अश्तर का नाम सुनकर सर खम ना करे तो उसने जसारत की है। हम तो फिर खाक के जर्रे हैं। ये एक नाचीज सा तोहफा है नसीबैन के लोगों की जानिब से। ये सालाना खिराज है जो आज से पहले शाम के गासिब हुकूमत को पेश करना पड़ता था। उम्मीद करते हैं कि आप कबूल कर लें और हमें शर्मिंदा न फरमाएं। मैं मशकूर हूं जनाब गवर्नर। अमीर इब्राहिम इब्ने मालिक अश्तर 3000 से जायद इराकियों के साथ शहर नसीबैन तक पहुंच गया है। हाकिम शहर ने उसकी बैत कर ली है और उसने वादा किया है कि उसके लश्कर के खाने पीने और खिराज का पाबंद रहेगा। हमारे रास्ते की थकन उतरने का इंतजार करते उसके बाद ही के बेटे की खबर हमें सुनाते। आप पे कुर्बान जाऊं। आपने खुद ही सिखाया है कि जंग की खबर नमाज सुबह की तरह है। अगर देर से हरकत करोगे तो कज़ा हो जाएगी। क्या ये मिसाल हमारे जरिए अक़वाल में से है? जी अमीर, एक गोहरे नायाब है आपकी जबान से। अच्छा ठीक है, तमाम तर नुमाइंदों और सरदारों को मुत्तला कर दो कि इजलास के लिए आ जाएं और खाना भी हमारे साथ खाएं। जी अमीर। फिर कहाँ गुम हो गए? फिर ऊंट के ख्वाब के बारे में सोचने मत लग जाना, मेरा दिमाग खराब हो जाता है उससे। उस ऊंट के बैठने की फिक्र के बजाय अश्तर के खड़े हो जाने की फिक्र में पड़ गया हूं। मुख्तार मालिक अश्तर के बेटे के बगैर भी एक खतरनाक मद्दे मुकाबिल है। जिस दिन उस मुर्दार यजीद के हुक्म पर मैंने मुख्तार को आजाद किया था, मैं समझ गया था कि किसी ऐसे दिन मुझे इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अश्तर का नाम ही और बहादुर सिपाही को डराने और जंग से पहले ही और देने के लिए काफी है। अश्तर का बेटा अपने बाप मालिक अश्तर की निस्बत से एक बड़ा नाम है, मगर जियाद का बेटा भी कुछ छोटी मोटी चीज नहीं है। मैंने तो वो दिन देखे हैं कि उम्र आज को इब्न जियाद के पास सियासत सीखनी चाहिए थी। अमीर, शाम का लश्कर नसीबैन तक पहुंच गया है और हमसे एक मंजिल के फासले पर पड़ाव डाल चुका है। वो तकरीबन 20,000 अफराद हैं। मरजाना के बेटे की सुना है कि मजूसियों और बेदीनों से जहाद करने की नीयत से गुस्ले जहाद भी किया है उसने। जाओ जाओ और खबर रसाना को इत्तला दे दो कि इब्न मरजाना की खबरें मुझे एक एक बारीकी के साथ फौरन चाहिए, हत्ता कि उसके खांसने की खबर भी। जी अमीर। सुना तुमने इब्न लुगैत?
इस मलून ने मुस्ताबाद को शामियों को धोखा देने का जरिया बना रखा। आखिर ये अबू सुफियान के तरफदारों की जाती खसलत है। तफैन में भी इन्हीं हीलियों के जरिए मौला अली के लश्कर को फरेब दिया इन्होंने। ये खतरनाक जाल है। शियों ने जालों में फंस फंस के इन्हें तोड़ना सीख लिया है। जहारत के गैर मरई जख्मों से खुदा की पनाह। अश्तर और उसका खानदान इराक के सबसे ज्यादा नामी गिरामी लोगों में से है। इराकियों की नजर में मालिक अश्तर हमेशा से बादशाह था और उसका बेटा शहजादा। मुझे तो हैरत है कि उसने मुख्तार की बैत कैसे कबूल कर ली। मैंने सुना है उससे ना चाहते हुए मुख्तार की बैत कबूल की है। मैंने भी सुना है कि अश्तर का बेटा शियों का बड़ा और अमीर होना चाहता था। मुख्तार ने किस चाल से उसे ठंडा किया है ये तो खुदा ही जानता। कोई मंसूबा है आपकी नजर में? हमें चारों जानिब से अश्तर के बेटे पर हमला करना होगा। एक तरफ से उसकी अरबी गैरत को छेड़े कि वो अजमों के साथ क्यों मिला हुआ है, और दूसरी जानिब उसकी खानदानी रग को। अगर इराक पर शियों को हाकिम होना चाहिए तो अश्तर का बेटा और उसका कबीला उसका ज्यादा हकदार है कि अजम लोग या सक़फ़ी कबीला हुकूमत करे। तीसरी जानिब अश्तर के बेटे की उर्दूगाह है जो एहतमाली मुखालफतों के लिए तैयार है कुछ ऐसे बागी जो शामियों की माल गनीमत की नीयत से मैदान में आए हैं। मुझे इत्तला मिली है कि पिछले जंग में उन्हें ज्यादा माल गनीमत नहीं मिल सका। चौथी जानिब से वही आम अंदाज से जंग करना है। लड़ो ताकि लड़े। जब सभी कुछ सोचा हुआ है आपने तो फिर परेशान क्यों हैं? इब्न नुमैर, उस जंग से डरो जिसमें तुम ये समझते हो कि जीत जाओगे। अली का अंदाज क्या, अदल और इंसाफ क्या, अदल और इंसाफ है। क्या हुआ? मेरे ख्याल से इब्ने हुद है जिसकी आदत है हमेशा मुखालफत करने की। रोजाना किसी बहाने से शर फैलाता है। तुम लोगों ने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? मैं शर्मिंदा हूँ अमीर, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हमें लगता था कि उसकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। हमारे लश्कर की तादाद की कोई अहमियत नहीं इब्न लुगै। नीयत लश्कर कामयाबी की शर्त है। इब्न मरजाना ने जितना हमारे दरमियान कूद डालने की कोशिश की है उतनी अपनी लश्कर के शमशीर ज़नों की तरबियत पे भी नहीं की होगी। एक कीड़ा पूरी की पूरी फसल को खराब कर सकता है। इब्न हुर जैसे लोग उसी कीड़े की मानंद हैं। अली का अंदाज क्या, अदल और इंसाफ है, अदल और इंसाफ है। अली का अंदाज क्या। ये क्या तमाशा है इब्न हुर? कौन सा तमाशा शहजादे? हम अपने मौला के तरीके का नारा लगा रहे हैं। मौला अली का तरीका उनके चाक दिल मुरीदों पर पोशीदा नहीं है। अली ने अदल की खातिर जान दे दी। तुम मौला अली की पैरवी करने वालों को किस जुल्म की खबर देने आए हो? कौन सा जुल्म? मैं गिनता हूं, तुम लिखते जाओ। बेहतरीन आला नस्ल के घोड़ों, नर्म और गर्म खीमों और मोटे ताजे निवालों, जिरहों और बाकी सामान की तो बात ही नहीं करता। तकरीयत के खिराज में से आपने सिर्फ 5000 दिरहम मुझे और मेरे खानदान को दिए और बकाया मुख्तार को भेज दिए। मैंने उफ नहीं कहा। नसीबैन के खिराज में से फिर हमें एक हकीर सी रकम मिली। क्या ये है अली का इंसाफ? खौफ व खतर हम अपनी जान पर लें और उसके गनाइम मुख्तार और उसके अजीजों को मिलें। जंग के गनाइम मुसलमानों के बैतुलमाल से मुताल्लिक होते हैं जिनसे अच्छी खासी मखलूक के मामलात को चलाना होता है। मत मेरे और तुम्हारे दरमियान और फौज के दरमियान बढ़ जाए। मुझे ऐसी बेमानी तौजीहात नहीं सुननी। कौम कोई सड़कों पर भूखी नहीं पड़ी हुई कि जिनकी रोटी पानी उनके फौजियों के गनाइम पर चल रही हो। इब्न हुर, इस लश्कर ने अपनी जान को चंद दिरहम और दीनार के बदले नहीं बेचा कि बकौल तुम्हारे चंद सिक्कों की खातिर बातें बनाकर तफर्रुक़े में पड़ जाए और माले गनीमत की लालच करें। तुमने माले गनीमत की लालच में तलवार उठाई है तो जा सकते हो, रास्ता खुला है तुम्हारे लिए। वहां जाओ जहां हकीर सी रकम के बजाय बड़ी बड़ी रकम दी जाती है। मुझे दरहम और दीनार वाले सिपाही नहीं चाहिए। क्या ये तुम्हारा आखिरी फैसला है?
मेरा पहला फैसला भी यही था। बहुत खूब। जो भी इन हरकतों को बर्दाश्त कर सकता है वो रुक जाए, अपनी उंगलियां अपने कानों में डाले और कुछ ना बोले। इब्ने अश्तर, मैं और मेरे खानदान के लोग जा रहे हैं, ताकि तुम लोग हमें अहमक न समझो। हम जा रहे हैं आपके अमीर से अपना हक मांगेंगे। क्या ये बेहतर ना हुआ कि अमीर मुख्तार कोई खत लिख दे और जो कुछ हुआ उसकी खबर दे दे? कहीं इब्ने हुर की लगाई बुझाई अमीर को हमसे नाराज न कर दे। मुख्तार इससे कहीं ज्यादा होशियार है कि इब्ने हुर जैसों की चालों की जाल में आ जाए, मगर फिर भी खत लिख देना अदब और ताबेदारी का तकाजा है। ए खुदा के सिपाहियों, मैं इब्ने हुर के इस तमाशे से समझ गया कि आपका दुश्मन शदीद खौफजदा है और वो हमारे दरमियान तफर्रुका डालकर अपने खौफ व हिरास का इलाज कर सके। अगर मेरी मानते हैं तो सुन लीजिए कि जो आवाज भी दूयत की बदबू से भरी हुई हो वो दुश्मन की चाल है। आज माले गनीमत के बहाने, कल अरब और अजम के बहाने। मैं नसीहत करता हूं कि रातों को अपनी बैठकों में जंग सिफ़ैन के तल्ख और गमगीन हालात को याद कीजिए। हमने अपने घरों के सुकून इसलिए नहीं जोड़े कि माले गनीमत हासिल करने की सोचें। हम उस मरहम की तलाश में आए हैं जो हमारे दिल के जख्मों की दवा बन जाए। तेरे मुराद हमारे आंसुओं की गवाह